أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. میرے ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کی خدمت میں زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس موضوع پر کچھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے، آج بھی اسی پر، کیونکہ بہت وسیع موضوع ہے، تو آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ فطرہ نکالنی چاہیے۔ اس کے بعد سوال آتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، کون اس کے مستحق ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ آتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے، کس چیز کو نکال کے دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ نکالنے کا وقت کہاں تک ہے اور کس وقت زکوٰۃ فطرہ کو نکالنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو پانچواں سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا بینکوں کے ذریعے سے تحویل کر سکتا ہے زکوٰۃ فطرے کو، یا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ 4-5 سوال ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ غنی لوگوں پر، مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ مالدار لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ جو سال بھر کا خرچہ ان کے پاس ہو، یا سال بھر کا کٹھے ہی ان کے پاس جمع ہو، یا منتھلی ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے سال کے اخراجات آتے رہتے ہیں۔ فرض کریں سال کے اس کے پاس 4 لاکھ آتے ہیں اور اس کا خرچہ بھی سال میں 4 لاکھ ہی ہوتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ اور یہ خود پر بھی واجب ہے، اور ان لوگوں کا فطرہ بھی اس شخص پر واجب ہے جو لوگ اس کی زیر کفالت میں ہو، یعنی کھانا پینا یہ دے رہا، چاہے وہ زیر کفالت لوگ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ جیسے کہ کوئی 15 سال کا بچہ ہو، کوئی بالغ لڑکا ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، عید کی رات سے پہلے یعنی مغربین سے پہلے ہی کیوں پیدا نہ ہوا ہو، اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ اس شخص پر یعنی سرپرست پر واجب ہے۔ چاہے اس زیر کفالت میں جو لوگ ہیں وہ عاقل ہو یا مجنون ہو، اس کی عقل پختہ ہو، چاہے وہ پاگل ہو مجنون ہو، زکوٰۃ فطرہ بھی اس شخص پر، وکیل پر اور سرپرست پر واجب ہے۔ چاہے اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو، اس کا زکوٰۃ فطرہ بھی اسی سرپرست پر واجب ہے۔ چاہے جو زیر کفالت میں جو لوگ ہیں وہ اسی کے قریب ہو، اسی کے ساتھ ہو، یا بعید ہو، دور ہو، تب بھی اسی سرپرست پر ان سب کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ یعنی بچے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ چاہے اسی عید کے مغربین کی اذان سے پہلے بھی پیدا ہوا ہو، اس پر سرپرست پر واجب ہے۔ بچہ بڑا ہو چاہے بالغ ہی کیوں نہ ہو،
ज़ेर कफालत इस पर है, इस सरपरस्त पर, तो उसका भी देना वाजिब है। चाहे आकिल हो मजनून हो, फर्ज करे एक घर में एक बच्चा पागल है, उसे किसी चीज की तमीज नहीं है, फिर भी उस मजनून का, उस पागल का, उसकी ज़कात सरपरस्त पर वाजिब है। चाहे उसके ज़ेर कफालत में काफिर हो या मुसलमान हो, जैसे कि किसी के घर में ड्राइवर हो, किसी के घर में खानसामा हो, वो अगर काफिर हो, नौकरानी हो, नौकर हो, घर में काम करने वाले, चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उसका कफारा उस सरपरस्त पर वाजिब है। चाहे उसी के साथ हो, करीब हो या बाईद हो, फर्ज करो उसके घर में जितने हैं या उसी के मोहल्ले में जितने हैं या उसके औलाद अलग भी हो, ज़ेर कफालत उसके हो, खर्चा वर्चा वही सरपरस्त देता हो, तो उस पर वाजिब है। चाहे बाईद हो, फर्ज करे एक का बेटा किसी बाहर मुल्क पढ़ने जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं और ये खर्चा इधर से ये सरपरस्त उसको भेजते हैं, ज़ेर कफालत में है, तो भी चाहे किसी और मुल्क में ही क्यों ना हो, उसके ज़कात कफारा ज़कात फितरा भी इस सरपरस्त पर वाजिब है। उसके बाद आते हैं कि ज़कात फितरा की मकदार क्या है। ज़कात फितरा की मकदार 3 किलो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे खजूर हो, यानी उर्फ को देखा जाएगा। उस उर्फ में, उस मंतिके में, उस इलाके में ज्यादातर कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, उसी के मुताबिक उसे फितरा निकालना चाहिए। फर्ज करें कोई आटे के हिसाब से दे दे, 3 किलो आटा निकाले, किलो अगर 500 रुपये का है तो उसे 1500 निकालना चाहिए। अगर 100 रुपये का है तो 3 किलो के 300 रुपये निकाले। इसी हिसाब से कि वो नियत ये करे कि सिर्फ जो पैसा दे रहा है, फर्ज करे 300 अगर बन रहा है तो फकत इसी 300 को नियत करके ये फितरा है कि देना सही नहीं है। उसे नियत करना चाहिए कि जो 300 दे रहा है उस आटे के बदले में है, कि 3 किलो आटा देना है, उस 3 किलो आटे के बदले में ये 300 रुपया में उस फलाना फकीर को दे रहा हूं। इस तरह नियत करे तो उसकी नियत सही है। और उसके बाद कीमत दे सकते हैं, उसमें कोई इश्काल नहीं है। बस वो नियत ये करें कि फलाना चीज के बारे में, फलाना आटे के बदले में या फलाना चावल के बदले में या खजूर के बदले में ये पैसे में फकीर को दे रहा हूँ। इस तरह नियत करे तो उसकी नियत सही है, उसके फितरा सही है। उसके बाद ये तो हो गया कि मकदार। तीसरा सवाल यह है कि निकालने का वक्त, ज़कात फितरा निकालने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। कि ईद की रात बेहतरीन वक्त यह है कि ईद की रात आप उस फितरे को निकाल कर अलग करके रखें। जब आप अलग करके रखेंगे, चाहे बड़े नोट हों चाहे छोटे नोट हों, तो आप एहतियात से उसको जितने बनते उसी हिसाब से अलग करें। अलग करने के बाद आप उसको अपने खर्चे में नहीं ला सकता, हत्ता कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। फर्ज करे बड़े नोट है तो आप छोटे नोट रखकर बड़े नोट उठा नहीं सकते। अलग किया, बस अलग किया, खत्म। उसको फकीर तक, मिस्किनों तक पहुंचाना है। उस पर फिर तसर्रुफ करने की गुंजाइश नहीं है, जायज नहीं है किसी सूरत में भी उस पैसे में तसर्रुफ करे। उसके बाद अगर कोई नियत करे कि मैं सुबह नमाज ईद पढ़ूंगा, उसका इरादा ये हो कि नमाज ईद पढ़ने का, तो वाजिब है कि नमाज ईद से पहले वो फितरा अदा करे। अगर उसकी नियत ये नहीं है कि मैं सुबह की यानी ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये नियत ना हो कि नमाज पढ़ने का, तो उसके लिए वक्त है ज़ोहर तक। ज़ोहरें तक वो निकाल सकते हैं और वो पैसा गरीब तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एक सवाल ये है कि आया ये जो पैसा वो निकाल चुका है,
ये जो फितरा मुअय्यन फितरा उसने निकाला है, ये अपने मुल्क से यानी अपने इलाके से शहर से दूसरे शहर में ले जा सकते हैं कि नहीं? ये जायज़ नहीं है। इसको दूसरे शहर में ले जाके देना ये जायज़ नहीं है। उसके अपने मोहल्ले में गरीब गुरबा उसी को देना वाजिब है, तब उसके फितरा सही होगा। और इसी तरह तहवीलात के जरिए से भी आप किसी बैंक में जमा करना चाहते हैं कि किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में देने के लिए, तब भी वाजिब जरूर जायज़ नहीं है कि आप किसी बैंक के जरिए से उसको तहवील करें। हाँ, एक शर्त पे सही है कि आप बैंक में जमा करते वक्त आप नियत ना करें ये कि मैं फितरा जमा कर रहा हूँ, ज़कात फितरा जमा कर रहा हूँ, नहीं, ये नियत ना करें। आप बेशक तहवील करें, तहवील करने के बाद जिस मुल्क में जब पैसा निकाला जाएगा फिर आप अपने वकील को नियत करें या वकील नियत करके उधर फकीर मिस्कीन को दे सकते हैं। उसके बाद ये मिक़दार भी हो गया, वक़्त भी हो गया। अब मसला आते हैं कि किन को देना चाहिए, ज़कात फितरा का मुस्तहिक कौन है? आया उस मुस्तहिक में भी कोई शराइत है इस फितरे को देने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो यह है कि वो फकीर होना चाहिए, मिस्किन होना चाहिए। फकीर और मिस्किन, मिस्किन तो फकीर से भी कमतर तंगदस्त दर्जे का है। फकीर ये है कि वो सालाना खर्चा नहीं रखता हो, यानी उसके पास इतनी आमदन नहीं है कि वो साल का पूरा खर्चा उठा सके, चाहे वो उसके पास इकट्ठे ही ना हो, चाहे वो मंथली कमा के भी पूरा साल का खर्चा उसके पास नहीं होता हो, वही फकीर है, उसको दे सकता है। आया उस फकीर की भी कोई शराइत है जिसको ज़कात दी जाती है? हाँ, उसकी चंद शराइत है। एक शर्त तो ये है कि वो बेनिमाजी ना हो। अगर कोई बेनिमाजी हो, नमाज तारिक सलात हो, नमाज ना पढ़ता हो, तो उसको फितरा देना जायज़ नहीं है। फितरा देंगे तो काबिल कबूल नहीं है, आपको दोबारा आप पर वाजिब है कि फितरा दे। उसके बाद शारबुल खम्र यानी शराबी ना हो। नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई शराबी बंदा हो तो उसको भी आप ज़कात फितरा नहीं दे सकते हैं, जायज़ नहीं है, उसको दे दें। तीसरा ये है कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो। सिर्रन किसी से गुनाह सरजद हो जाए, ये वो शराइत नहीं है जो इमाम जुमा या जो नमाज पढ़ाने वाले इमाम की शराइत है। उसमें तो अदालत शरत है, तमाम वाजिबात को अदा करने वाला हो और तमाम मुहर्रमात से बचने वाला हो। अब इसमें यह नहीं है कि आप किसी को फितरा देना चाहते हैं तो वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो बंदा। सिर्रन किसी से गुनाह हो जाते हैं, किसी को पता नहीं है कोई गुनाह हो उससे हो जाए, तो उसमें कोई इश्काल नहीं है कि सिर्रन खुल्लम खुल्ला हर किसी को दिखाते हुए कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, और इस तरह खुल्लम खुल्ला वो गुनाह करता है, तो उसको देना जायज़ नहीं है, हराम है। उसके बाद उस बंदे को ये यकीन हो कि ये जो मैं फितरा उसको दे रहा हूं वो किसी गुनाह में सर्फ नहीं करेगा या कोई गुनाह में उसको ताउन साबित नहीं होगा। तब यकीन हो कि ये गुनाह में सर्फ नहीं करेगा, तब ऐसे बंदे को ये फितरा, ज़कात फितरा उस फकीर को दे सकते हैं। इन 3-4 शराइत जिनमें पाई जाए तब वो उस बंदे को अपने ज़कात फितरा दे सकते हैं। एक मसला ये है कि आया गैर सईद का फितरा सईद ले सकते हैं? नहीं, ये जायज़ नहीं है कि गैर सईद का फितरा सईद को देना हराम है, जायज़ नहीं है। हाँ, अगर सादात में से कोई गनी हो, सादात अपना फितरा किसी गरीब सईद को देना चाहे तो कोई इश्काल नहीं है इसमें, वो फितरा सही है, दे सकते हैं। अम्मा गैर सईद सईद को नहीं दे सकते, अम्मा सईद गैर सईद को फितरा दे सकते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं। तो ये कुछ फितरे के हवाले से थे। इंशाअल्लाह और भी मसाइल, पेचीदा मसाइल है इसमें कि हमें सिर्फ इंसान के जहन में यही होता है कि फितरा बस सिर्फ पैसा ही देना है,
नहीं, अगर सिर्फ पैसा ज़हन में रख के देंगे तो उसका सही नहीं है फितरा। उसे जिस चीज़ के बदले में वो दे रहा है वो ज़हन में रखना चाहिए उसे, क्योंकि ये फितरा शर्त है कि रोज़े की कबूलियत के लिए, ताकि गरीब गुरबा भी हमारे साथ ईद मनाएं, गरीब गुरबा के घर में भी अखराजात पहुंच जाएं। तो हर किसी पर ये जो भी रोज़ेदार है उस पर ये ज़कात फितरा निकालना वाजिब है। हाँ, एक मसला ये है कि फ़र्ज़ करे कोई अगर माह रमज़ान के दरमियान में या शुरू में ही ज़कात फितरा निकालना चाहते हैं तो आग़ाए सैयद सिस्तानी के मुताबिक कोई इश्काल नहीं है। आप ज़कात फितरा निकाल कर नियत करके किसी गरीब मिस्किन को दे सकते हैं, ताकि माह रमज़ान उसके भी इफ्तारी और सहरी का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल सके। वाखिर दावाना